Class 10th Statics Exercise 13.1 Chapter 13. Question number first. A survey was conducted by a group of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. Number of plants 0 से 2, नंबर हाउस है 1, 2 से 4, नंबर हाउस है 2, 4 से 6, नंबर हाउस है 1, 6 to 8, नंबर हाउस है 5, 8 to 10, नंबर हाउस है 6, 10 to 12, नंबर हाउस है 2, 12 to 14, नंबर हाउस है 3. Which method did you use for finding the mean and why? So we have to start calculation here. First of all, we make its solution. Here we have given number of plants, number of plants. Here number of plants, number of houses, number of houses, फिर मिड क्लास मार्क या मिड वैल्यू of xi and fi xi. Number of plants is given 0 to 2. Number of plants given 0 to 2, 2 to 4 and 4 to 6 and 4 to 6, 6 to 8, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12, 12 to 14. Number of houses is that 1, 2, again 1, 5, 6, 2 and 3. So mid value of xi is that 0 and 2 is class mark xi 2, 0 to 1, 4 to 6, 6 का 3, 6 and 4, 10, 5, 8, 6, 14, 14, 14 का हमारा हो गया 7, 10, 8, 19 और 18, so 18 का हो गया 9, 12 and 10, 22, 11,
and 14 and 12 26, जिसका half 13. So we multiply 1 1 ja x, and this is the number of houses fi. So number of f into xi, fi xi, 1 1 ja 1, 2 3 ja 6, 5 1 ja 5, 7 5 ja 35, 9 6 ja 54, 11 2 ja 22, and 13 3 ja 39. So here is summation of fi xi, summation of fi xi is equal to, and summation of fi, summation of fi is equal to summation of fi. So here number of plants or fi mid value is xi and fi xi, so we calculate it. Here 2 1 3 4 4 5 9 9 or 6 15 16 17 18 19 20, there is sum is 20, and fi xi sum is that here 9 10 11 11 and 4 15 15 or 5 20 20 or 5 25 25 25 and 6 25 and 6 31 and 32, there is 2 32, 3 3 6 7 8 8 and 5 13 13 13 or 3 162 162. So here we summation fi is equal to 20 and summation fi xi is 162. So we now the mean formula is that x mean is equal to summation fi xi upon summation fi. So here 162 oblique 20. So we get here, we divide it, 162 divide it. First of all we cut values, 162 oblique 20, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 2 10 जा 20. So 10 से हमने डिवाइड किया तो we get answer 8.1. 8.1. So here we ask which method did you use to finding the mean and why. तो हम लिखेंगे यहाँ hence we used direct method reason as a easily there are number given table are small given table is small and we easily find by direct method. We easily find by direct method. So हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, बहुत इजी
क्वेश्चन था, हमने पढ़ा, कंसेप्ट टेबल क्रिएट किया, एफ आई एक्स आई बनाया, मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई निकाली हमने, एफ आई एक्स आई का सम देखा 162 आया, समीशन एफ आई का 20 आया और डायरेक्ट मेथड हमने लगाया। सो हम ये यूज जो किया डायरेक्ट मेथड का यूज किया और हमने सॉल्यूशन फाइंड किया डायरेक्ट मेथड से। 8.1 हमारा जो है आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन of daily wages of 50 workers of a factory. Daily wages in rupees, daily wages 100 to 120, 120 से 140, 140 to 160 और 160 to 118 और 180 to 200. Daily wages, there are number of workers 100 to 120, 100 to 120 is 12%, 120 to 140 is 14%, 140 to 160 is 8%, 160 to 180 6%, 180 to 200 10%. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को बताया जाता है कि कंसीडर करना है हमारे को फॉलोइंग, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस का मतलब डेली हमारे खर्चे, जो हम लोग वर्कर्स हैं तो हम लोग डेली कुछ खर्च करेंगे, उस खर्चर्स का 50 वर्कर्स का फैक्ट्री में हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो डाटा वेजेस जो है 100 रुपये से 120 रुपये जो खर्च करता है वो 12 वर्कर्स हैं। जो 120 रुपये से 140 रुपये जो खर्च करने वाले हैं उसमें 14 नंबर पर्सन है और 140 से 160 160 से 8% है, 160 से 180 जो खर्च करता है आदमी वो 6% है, 180 से 200 10% है। तो हमें फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, इन वर्करों का हमें मीन निकालना है फैक्ट्री बाय द यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, और हमें एप्रोप्रिएट मेथड का भी इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इज दैट हियर सॉल्यूशन डेली वेजेस इन रुपीस, डेली वेज इन रुपीस और number of workers here हम xi the mid value of xi एंड यहाँ पर a फाइंड कर लेंगे हम और di निकालेंगे विच इज़ xi माइनस a एंड fi di, फाइनल fi और di फाइंड करेंगे। सो डेली वेजेस में 100 to 120 जो एक्सपेंड करने वाले पर्सन का नंबर लिख लेंगे, 100 to 120, फिर 120 से 140 एंड 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे 12%, 14%, 8%, 6%,
एंड 10%। मिड वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 100 एंड 120 को जोड़ेंगे तो 220, जिसका मिड वैल्यू आएगी 110, और 120 और 140 को ऐड करेंगे तो 260, जिसकी मिड वैल्यू आएगी 130। 140 और 160 को ऐड करेंगे तो आएगा 300, जिसका मिड वैल्यू आ जाएगी 150, और 116 और 118 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 340, जिसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 170, 170, और 200 एंड 380, जिसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 190। Here we see there is A is our, both side we see the a column here, कॉलम में 2 वैल्यू हमने यहाँ छोड़ देंगे, 2 वैल्यू यहाँ छोड़ देंगे, दिस इज़ आवर A, दिस इज़ A। तो A हमारा क्या है 150 है। तो 150 में से 110 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा 150 में से 1 तो माइनस का 14, माइनस का 40। कैसे किया हमने, लुक हियर, हियर xi minus a is 150 and xi is 110, सो माइनस किया तो माइनस का 40। इसी प्रकार 100 ये 30 है, तो 30 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20, माइनस का 20, एंड 150 को 150 से माइनस करेंगे 0, 170 करेंगे तो 20, एंड 190 को करेंगे तो 40। सो FI DI मल्टीप्लाई कर देंगे, FI और DI, दिस इज अवर FI। 12 4 जा 480 माइनस 480 एंड 14 2 जा 28 माइनस 280 280 एंड 280 एंड 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 108 मल्टीप्लाई 0 0, 6 से किया तो 120, और 10 से किया तो 400। So here summation of FI is equal to, हमने ऐड करेंगे 8 6 14 18 19 20 20 0 2 1 3 4 5 50, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 1 5 520 520, और माइनस यहाँ पर प्लस का है और माइनस का हमारा आ रहा है 0, 8 8 16 6 एंड 5 2 7 माइनस। सो वैल्यू इज दैट हेयर 0 0 एंड 6 में 2 गया 4 एंड 7 में 5 गया 2, 240 हेयर 0 6 में 2 गया 4 7 5 गया 2, 240। तो हमारा जो FI DI आया, FI और DI समीशन जो आया माइनस 240 आया, और हमें मिड वैल्यू हमें मालूम है, सो हम निकाल सकते हैं इक्वल टू A प्लस समीशन FI DI ऑब्लिक समीशन FI। सो इसको हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। Here
Here A is we now 150 plus FIDI is minus 240 और समीशन हमारा कितना है 50। सो 0 कैलकुलेशन कर सकते हैं, कट कर देते हैं, 0 से 0 कट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू 150 और 5 को हमने 24 से डिवाइड कर देते हैं तो 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 4.0 5 8 ज़ा 40। सो माइनस माइनस 4.8 जो कि हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद 145.20 105.20 हेयर। एक बार और रिपीट कर लेते क्वेश्चन को। हमारे पास वर्कर्स जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसका डेली वेजेस दिया था 100 से 120 रुपये खर्च करने वाले 12% थे, 120 से 140 14% थे। ये सब हमने कैलकुलेशन नंबर ऑफ वर्कर्स निकाले 50 और FIDI हमने निकाला माइनस 240। फिर XI में से हमने माइनस किया तो हमारा जो है D, यहाँ पे DI हमने निकाल लिया माइनस 40 और इसी प्रकार माइनस 20 एंड 40। फिर हमने FI और DI मल्टीप्लाई किया। सो हमारा आंसर आया माइनस 240 और इसको हमने एज्यूम मेथड में रखा। एज्यूम मेथड का हमने इस्तेमाल किया। एक्स मिड वैल्यू निकाली, दिस इज मीन हमने निकाला A प्लस FIDI और FIDI हमारा समीशन जो आया माइनस 240, 0 कैंसिल कर दिया और हमने 5 से 24 को डिवाइड किया तो माइनस 248, जिसे माइनस करने के बाद हमारा आया 145.20। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 3 is that question number 3 the following distribution shows the daily packets allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rates 18. Find the missing frequency f. Daily pocket allowance 11 to 13, number of children 7 है और 13 to 15 रुपीज़ जो अलाउंस मिल रहा है वो 6 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं। 15 to 17 को 9 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है। 17 to 19 में 13 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है और 19 to 21 जो है एफ़ है, एफ़ जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एंड 21 to 23 इज़ 5 है एंड 23 to 25 इज़ 4। तो यहाँ पर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन जो सो डेली पैकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी का दिखाया गया है। मीन्स पॉकेट अलाउंस इज़ मीन्स 18 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर हमारे को डेली जो पैकेट अलाउंस मिल रहा है बच्चों को, लोकेलिटी का मतलब एक समुदाय, एक लोकेलिटी, एक कॉलोनी है जहाँ पे मीन पैकेट अलाउंस जो है जिसका मीन जो है हमारे को गिवन है 18 रुपीज़ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। और यहाँ पर डेली पैकेट अलाउंस जो है 11 से 13 रुपये यानी कि 11 to 13 रुपीज़ जो है 7 चिल्ड्रन को मिलता है और 13 to 15
6% को मिलता है, और 15 to 17 9% को मिलता है, 17 to 19 13% को मिलता है, और 19 to 21 जो है एफ है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, एंड 21 to 23 5% को मिलता है, 5 चिल्ड्रन को मिलता है, एंड 23 to 25 4% को मिलता है। तो हम इसको कैलकुलेशन को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन इज दैट here is daily packet allowance, daily pocket allowance in rupees. Second is number of children, number of children, and here mid value of xi, mid value of xi and fi xi, so the daily packet of allowance क्या क्या है, 11 to 13 जो है वो 12 चिल्ड्रन है, 11 to 13 जो है हमारा 7 चिल्ड्रन है, और 13 to 15 6 चिल्ड्रन है, एंड 15 to 17 9 चिल्ड्रन है, और 17 to 19 13 चिल्ड्रन है, 19 to 21 इस हमारा एफ है, और 21 to 23 is 5 and 23 to 25 is 4 चिल्ड्रंस हैं। तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इजी फाइंड है, कोशिश करते हैं आसानी से हो जाए। 13 1 14 14 24 जो कि हमारा 12 आएगा, 15 3 18 28 का 14 आएगा, और 17 का 32 जो कि 16 आएगा, एंड 19 20 30 36 18 आएगा, और यहाँ पर हमारे को जो मिड वैल्यू है 21 और 9 30 40 20 आएगा, एंड 23 24 24 44 22 एंड 25 और आपका 23 जो है 48 का आएगा 24। सो हियर एफ आई एक्स आई 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेयर 234 एंड 234 20 को f से करेंगे 20f, 22 को 5 से करेंगे तो 110, और 24 को अगर हम 4 से करते हैं तो 96। सो हेयर is number of children is fi
ये इसका हम समीशन निकालेंगे एफ आई का। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू ऐड कर लेंगे 7 6 13 13 16 25 25 और 5 25 5 30 34 34 34 and 3 carry 4 44 plus f. Here is also sum. Here sum is 4 4 4 4 16 16 और 16 और 6 22 2 and 5 9 14 14 15 15 15 and 3 18 18 18 और 4 22 22 30 और 30 और 38। एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 16 और 6 22 10 18 18 and 4 18 4 22 22 22 और 3 25 25 और 25 and 25 26 26 and 26 and 26 और 26 35 3 1 4 5 6 7 752 752 plus 752 plus 753 plus 20f 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 20 752 plus 20f. So here 752 plus 20f is our summation fi xi. So here we given mean xi is equal to 18 और समीशन एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस एफ एंड समीशन एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ. सो वी यूज द फॉर्मूला एक्स आई इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई इक्वल टू 752 प्लस 20f ऑब्लिक में 44 प्लस f. सो मीन इज गिवन 18 इक्वल टू 752 प्लस 20f. So here 752 plus 20f ऑब्लिक में 44 प्लस f 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f. सो 18 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 792 प्लस 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f. सो 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f. सो देयर इज 2f इक्वल टू 0.4. सो f की वैल्यू जो हमारी आई 40/2 जो 20. So f is equal to 20. We easily the missing frequency f is equal to 20. So हमने बहुत इजीली फाइंड आउट किया है
क्वेश्चन को समझा भी, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने बहुत अच्छे से किया, सॉल्व आउट किया। इसको हमने FI निकाल, समीशन FI निकाला 44 प्लस F, समीशन FI XI 750 20F, और मीन निकाला 24 प्लस F है हमारा, और यहाँ 752 और 20F, और इसकी वैल्यू हमने FI XI में रखा और 44 को 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 720 18F 752 20F एंड माइनस किया तो 40 2F, F से माइनस किया तो 20, F इज 20, सो मिसिंग नंबर इज़ 20। हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। थैंक यू, आप लोगों को समझने में आसानी आ रही होगी। थैंक यू।